हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पलक, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर। तो जो लोग पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं, सो वी आर डूइंग इंटीरियर्स ऑफ एवरी स्पेस लाइक बी इट अ होम और ऑफिस. You can follow us on our Instagram handle, that is Palaksha Interiors, and you can also check such amazing videos on our YouTube channel. So today we are going to show you a very amazing 3 BHK home which is in Eon Homes Hinjewadi, and this is a luxurious elegant home design which we have just handed over. So to start with, सबसे पहले when we met the client for the first time, they gave us the specifications कि उनको कैसा घर चाहिए. So first thing they mentioned was they wanted a मॉडर्न होम, बट एट द सेम टाइम उनको ट्रेडिशनल साउथ इंडियन टच चाहिए था उनके घर में हर एक जगह पे. सो वी हैव ट्राइड टू गिव दैट ऑल्सो. So let me just show you the entire house, but before that I would like to really appreciate the client to give us this opportunity. And to be very honest, जो ये पूरा एक प्रोसीजर था from the starting to design till execution, but in actual they gave us the freedom to explore some designs, to do some trial and errors, and when and where we were coming up with the suggestions and the design ideas, they always trusted the instinct and they give us a go ahead for the same. So now let me take you to the site and show you the house. Hi, I'm Ganesh. This is my family, my wife Janaki, my daughter Srishti, and our pet dog Simba. We moved to Pune 6 years ago, and we bought this home in 2019, and the builder handed this home to us in July 22. And then we were kind of scouting for a lot of interior options. We spoke to, in fact, a couple of interior designers, many interior designers, and we were not so convinced with the approach that they took, because most of them were using the modular way of the interior design, where they just go to a factory, they just take the measurements and they just come here and fix those wooden parts, and we were not getting that personalized touch talking to those designers. And then we got introduced to Palak through several Instagram posts. I think my Janaki was continuously watching some of the Instagram posts, and also we got some reference from some of the colleagues or friends. And then we got an opportunity to meet Palak, and we kind of explained to her our requirements. It was a pretty complex requirement that we had, because
we wanted a modern touch to our home, and also we wanted a traditional South Indian theme also to be part of it, right? Part of the design. So, believe it or not, I think the design phase went through a couple of months, and I know that we have bugged Palak a lot, right? And we have given a lot of specific requirements on how things have to be. So, in fact, like one of the example is we wanted all the designs to be complete, right, from floor to design. You see our wardrobes, our living room, or our dining area. You can see that the design kind of completes the entire wall, and that was the requirement that we had because we wanted our home to look spacious, bigger, less clumsy, right? The design had to be free flowing, and all these requirements were taken positively by Palak, and she and her team did a wonderful job. They went through a lot of 3D designs and 2D designs, a lot of reviewer and approval process, and once we had the designs in place, then the execution started. So I think she kind of committed to the dates that she promised us. So it took around 3 months where she was able to execute and hand over the project by November 1st, right? And we were all set to move in by that time. So it's a great home, a great project, great work by Palak and team. So we are kind of now settled down in a new home, and we are feeling quite happy living here. So come on in, let me show you this beautiful home. So this is the foyer area. First of all, let me show you how we design it in the 3D. So this is the entry of the house, and we have a niche over here. So यहाँ पे हमने shoe rack कम console design किया है. As you can see, it is a very neat and clean design. We have not given any handles over here, and ये सारा जो details है वो push magnet storage है. Inside we have given the shelves. We have left this space open so that यहाँ पे artifacts and key holder वगैरह आ सके. And then we have put some lights over here. On top also we have given the storage, but definitely it is not looking heavy on the eye because the color combination and design goes very well in the theme. So this is also push magnet shutters, and it has the storage inside. Now coming to here, we have a sitting space over here. So it is quite comfortable area also, and when you want to wear a shoes or remove, you can just sit over here. Now we have this beautiful hanging light on the top. It gives a very nice and elegant look to the entire area. So this is the shoe rack cum console area. So now on the other side we have a dining area, and when you enter from here, definitely if you don't have the partition, आपका पूरा space बहुत ही open हो जाता है from the door. So हमें ये चाहिए था कि हमें थोड़ी सी प्राइवेसी मिले, बट एट द सेम टाइम हमें ये पूरा पैक नहीं कर देना था. सो वी वर लुकिंग फॉर सम डिज़ाइन जिसमें हमें सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज स्पेस मिले, जो कि जिससे प्राइवेसी मेंटेन भी हो पाए, बट जो बहुत ही अच्छा ये लिविंग रूम और डाइनिंग का साइज़ है उसको हमें कॉम्पैक्ट नहीं करना था. सो फाइनली वी हैव मेड दिस पार्टीशन. सो एज यू कैन सी, दिस इज़ अ रोटेटिंग पार्टीशन. सो यू हैव द फ्रीडम कि आपको इसको बहुत अलग अलग तरीके से आप अरेंज कर सकते हो. ऑन द मिडल हमने ये फ्रोस्टेड ग्लास लगाया है, एंड देन वी हैव गिवन दिस स्ट्रेट एजेस, एंड ऑन टॉप एंड बॉटम वी हैव गिवन दिस कर्व्स. और नीचे हमने एक सर्कल लिया है जिसमें भी हमने ग्लास लगाया है, बट दिस इज अ ब्रॉन्ज ग्लास. सो इसको हमने फ्लोर टू सीलिंग टच लिया हुआ है, एंड यू कैन अरेंज इट इन सो मेनी डिफरेंट वेज लाइक दिस. This is also one option. So whenever you want the visibility of the dining and crockery side, you can arrange it like this. You can also go for alternate design arrangement like this, and you can rearrange the partition in different ways, and this looks very nice and slick, and it also gives the freedom कि आपका जो partition है उससे आपको privacy भी मिल रही है, and also the visibility of other space. And one more thing is that we have designed this partition, और वो डाइनिंग एरिया के बाजू में है, तो उसमें भी हमने ये जो डिज़ाइन है उसकी कनेक्टिविटी दी है. आई विल एक्सप्लेन यू दैट.
First, let me take you towards the most beautiful living area. This is the living area. First of all, let me show you how we designed this living area in the 3D. This is the living area. यहाँ पे हमने 3+2 सीटर का अरेंजमेंट किया हुआ है. They have a pad. They wanted as open space as possible. As you can see, this chairs are in different shade and this sofa is in different shade. ये हमने कस्टमाइज करवाया हुआ है पूरा. ये जो है वो हाई बैक चेयर है and this is the very nice leatherite sofa. On the back wall of sofa we have given this beautiful molding. सेंटर में हमने वॉल क्लॉक लगाया हुआ है एंड ऑन द बोथ साइड हमने वॉल लैंप्स लगाए हुए हैं विच इज अगेन इन 3-in-1 शेड. सो इट हैज़ द डिफरेंट लाइट्स as per your mood and utilization. You can just change the light from this. So one thing the client wanted was, whenever we discussed, they were like, we want a traditional South Indian touch when and wherever it's possible. So we have taken this beautiful swing over here. ये जो वुडन का स्विंग है वो हमने कस्टमाइज बनाया हुआ है एंड एज यू कैन सी दिस बार्स, तो वो क्लाइंट ने स्पेशली उनके नेटिव से मंगवाए हुए हैं विच इज कॉम्प्लीमेंटिंग द स्पेस सो नाइसली. एज यू कैन सी दिस हैज द पीकॉक, this has the elephant and this is going so well with the entire wooden swing theme. So here what we have done is we have given a plain swing. First we thought of many ideas, like we wanted a backrest, then we thought of giving a reversible swing, but then we finalized on this plank swing. इसके benefit भी ये है कि that side we have a dining area. So if the guests are sitting over here, you can also sit facing this side, and if there are guests sitting on the dining area side, you can also sit on the other side of the swing. So this is also looking very nice because it gives you very open space. So when first we thought of designing a swing over here, definitely हमें थोड़ा सा client को ये भी था कि हमारी space कम नहीं हो जाए, because they wanted as much as possible, उनको free space चाहिए था to move around and they have a pad. So definitely उनको सारे edges भी वैसे चाहिए थे जो soft edges हो. ये घर का जो पूरा डिज़ाइनिंग है वो प्रीमियम फिनिश और प्रीमियम मटेरियल यूज़ हुआ है, जैसे कि PU फिनिश है, विनियर है, मार्बल है, कहीं पे ग्लास है, कहीं पे भी हमने लैमिनेट वगैरह यूज़ नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द शार्प एजेस ऑल्सो. सो नाउ let me show you the best part of this living area, that is the TV unit. So this is the TV accent wall and this is the heart of the house. We have used this onyx marble for the wall cladding over here. So ये जो onyx marble होता है, it is quite luxurious and to be honest it's very expensive also. इसका मेन जो क्राइटेरिया है, जो स्पेसिफिकेशन है ये मार्बल का, वो ये होता है कि इसमें से लाइट आपको दिखती है. जनरली जो मार्बल्स होते हैं नॉर्मल वाले, अगर आप उसको पीछे लाइट वगैरह लगाते हो तो वो आपको दिखती नहीं है आगे की तरफ. सो दिस इज द ओनिक्स मार्बल. हम आपको दिखाते हैं कि जब हम ये पूरा स्लैब लाए थे तब कैसा था एंड नाउ व्हेन यू आर वॉचिंग द फाइनल आउटकम, हाउ इट इज लुकिंग. सो ये ओनिक्स मार्बल का जो शीट है इट वाज लाइक 500 kg प्लस एंड उसको हमने पूरा यहाँ पे फिनिशिंग करवाया हुआ है. पीछे पैनलिंग करके वी हैव इंस्टॉल्ड अ लाइट एंड देन वी हैव केप्ट दिस गोल्डन पट्टी ऑन द एज ऑफ दिस ओनिक्स मार्बल. सो देन वी हैव दिस स्टोन फिनिश टाइल्स ओवर हियर एंड फिर वापस हमने गोल्डन पट्टी इनले की है एंड देन वी हैव दिस ओनिक्स मार्बल. ऑन द अदर साइड जहाँ हमारा टीवी यूनिट खत्म होता है, बोथ द साइड वी हैव द चारकोल पैनलिंग. सो चारकोल पैनलिंग में हमें एक टेक्सचर मिल जाता है एंड इट लुक्स वेरी नाइस विद द रॉ ऑनिक्स मार्बल. नीचे का जो हमारा टीवी यूनिट है उसको हमने विनियर फिनिश किया है और उसके ऊपर हमने PU पॉलिश किया हुआ है. सो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ पॉलिशेज इन द मार्केट, बट सबसे जो हाई एंड पॉलिश होता है वो PU पॉलिश होता है, जो कि हमने यहाँ पे विनियर पे किया हुआ है. सेंटर वाला जो पोर्शन है वो हमने ओपनेबल दिया हुआ है सो दैट यहाँ पे अगर कुछ भी स्टोरेज करना है या डिश टीवी वगैरह रखना है तो हो सकता है. ऑल द प्लग पॉइंट्स आर ऑल्सो देयर. ऑन द स्विचेज टू कॉम्प्लीमेंट दिस ग्रे कलर वी हैव गिवन द डार्क ग्रे स्विचेज एंड प्लेट्स ओवर हियर. सो ओवरऑल दिस इज द एक्सेंट वॉल ऑफ दिस लिविंग एरिया. नाउ this side
we have kept this LED lights also which is getting connected to the ceiling also, और वहाँ से हमने swing का paneling लिया हुआ है. So over here we have done little bit of customization also. ये जो लाइट की स्ट्रिप है, अगर हम उसको यहाँ आधे से लगाते, बिकॉज वी वॉन्टेड टू गिव दिस लुक कि ये लाइट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये और थोड़ा नीचे से स्टार्ट हो रही है, एंड सेम थिंग व्हेन इट गोज टू द पैनलिंग वहाँ पे एंड हो रही है. तो अगर हम उसको आधे से लगाते तो उसका फिनिशिंग बहुत खराब दिखता. सो व्हाट वी हैव डन ओवर हियर इज, हमने पूरी लाइट ली है, देन वी हैव पेंटेड दिस लाइट इन द मैचिंग कलर ऑफ दिस लूवर्स, एंड दिस आर द चारकोल पैनल्स. सो फॉर द टीवी यूनिट्स हमने ये 4 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं. तो यहाँ पे हमने हैंडल्स नहीं लिए हुए हैं. दिस ड्रॉवर्स कैन ओपन फ्रॉम द बिलो वेरी इजीली. The reason behind that is कि whenever you are walking, this is a balcony, very huge and nice balcony. So whenever you are walking in this passage, अगर यहाँ पे handles होते हैं तो थोड़ा सा वो लगने का भी चांस रहता है. And they have a pet in the house, so we have made the entire living area handleless. ये लिविंग एरिया में और ये पूरे घर में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो भी डिज़ाइन किया हुआ है वो हमने फ्लोर से सीलिंग टच का किया हुआ है. जनरली ये होता है कि जो लिंटल लेवल होता है, दैट इज अ डोर का टॉप लेवल, वहाँ तक ही मोस्टली सारे डिज़ाइन जाते हैं. बट हियर इन द एंटायर हाउस ये क्लाइंट का एक पहले से एक स्पेसिफिकेशन था कि हमें फ्रॉम फ्लोर टू सीलिंग ही डिज़ाइन करना है. एंड टू बी ऑनेस्ट इट गिव्स अ वेरी नाइस लुक, बिकॉज सारी डिज़ाइन जो फ्लोर टू सीलिंग टच की है उसकी वजह से जो हाइट है घर की वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो रही है, एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस एंड एलिगेंट लुक. यहाँ पे जो कर्टेन का थीम लिया है वो जो शेयर है उसमें हमने थोड़ा सा गोल्डन शिमर वाला सिलेक्ट किया है, और जो बेस है वो बेज कलर में गए हैं, बिकॉज एज यू कैन सी वी हैव पुट सम कलर्स ऑन द सोफा. तो हमें कर्टेन में ज़्यादा कलर्स नहीं चाहिए थे, बट एट द सेम टाइम हमें वो गोल्डन टच चाहिए था जो हमने पूरे लिविंग रूम में कहीं ना कहीं ऐड किया है. जैसे कि आपने देखा होगा तो वॉल लाइट जो ली है उसका जो रॉड है वो गोल्डन है, स्विंग जो है उसके जो रॉड्स है वो गोल्डन है, डाइनिंग के ऊपर वी हैव डन दैट पेंट, PU पेंट इन गोल्डन. So we have taken glimpse of gold in entire living room. We wanted to follow the same in the curtain also. तो यहाँ पे जो sheer curtain है उसमें हमने हल्का सा शाइन, गोल्ड शाइन वाला sheer curtain लिया है. And for the solids we have taken the beige with the self print. So this is the living area. Now let me show you the dining area. So this is the dining and crockery area. Let me first show you how we design it in the 3D. So यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छी स्पेस है क्रॉकरी यूनिट के लिए. So यहाँ पे हमने ये किया है कि we have given a very good heighted crockery unit, और उसमें as you can see this details, तो जो पार्टीशन का हमारा डिज़ाइन था उसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे भी कंटिन्यूएशन में लिया है, जस्ट टू मेक दिस एरिया इन वन थीम. एज यू कैन सी देयर आर स्ट्रेट लाइंस एंड द कर्व सेम एज द पार्टीशन. नाउ ये पूरा जो क्रॉकरी यूनिट है वो हमने ब्लैक कलर में PU फिनिश किया है. नाउ ऑन दिस वी हैव दिस शटर्स, बिग शटर्स जो पुश मैग्नेट हैंडल है, एंड देन इनसाइड वी हैव गिवन दिस शेल्व्स. ऑन द टॉप ऑफ दिस क्रॉकरी यूनिट हमने ब्लैक सर्विस काउंटर बनाया हुआ है, बिकॉज द किचन इज ऑन द अदर साइड ऑफ दिस वॉल एंड द डाइनिंग टेबल इज हियर. अगर ये काउंटर को एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म भी यूज़ करना है तो विदाउट एनी वेयर एंड टेयर, इफ़ यू हैव दिस ग्रेनाइट ऑन द टॉप वो आराम से हो सकता है और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है. नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्रॉकरी यूनिट वॉल इज दिस मिरर एक्सेंट वॉल. whenever we design any dining area, वास्तु के हिसाब से भी इट इज़ वेरी गुड इफ़ वी हैव द मिरर ऑन द वॉल. यहाँ पे हमने ये मिरर क्लाइडिंग किया है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमने ये डिज़ाइनर लाइट्स लगाई है विच लुक्स वेरी नाइस. ओवर हियर वी हैव गिवन द डार्क ग्रे स्विच बोर्ड to match it with the entire theme of the crockery area. So on the last panel we have created a very nice bar unit. So there are these two drawers over here. So on the top drawer you can arrange the
glasses, and on the bottom drawers you can arrange the bottles. So it goes really nice, and we have taken the dimensions based on the specific things which we have to keep in the bar unit. So this is the crockery area. Now this is the dining area. So we have taken this dining table, which is nano finish dining table on the top, and the chairs are fully upholstered leather chairs with the wooden legs. So we have taken this top in the white because ओवरऑल जो भी कलर कॉम्बिनेशन है उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है. सो बिकॉज वी हैव गिवन द वेरी नाइस ब्लैक कलर ऑन दिस साइड, ऑन द टॉप वी वांटेड अ प्लेन वाइट मार्बल. सो दिस इज द नैनो वाइट. एंड जनरली ये हो जाता है कि वेन एवर वी सजेस्ट एनी डार्क कलर, क्लाइंट्स आर लिटिल लाइक कि ये कैसा दिखेगा, डार्क नहीं हो जाएगा. बट एज यू कैन सी दिस लुक्स वेरी एलिगेंट एंड क्लासी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हमने बैलेंस किया है विद दिस लाइटर शेड ऑफ द डाइनिंग एंड चेयर. सो एज यू कैन सी, इफ आई एम सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द डाइनिंग टेबल, इफ आई अरेंज द पार्टीशन इन द वर्टिकल वे, आई कैन कम्प्लीटली सी थ्रू के सामने की तरफ कंसोल शू रैक की तरफ कोई अगर खड़ा है, आई कैन ईजिली टॉक विद दैम. इफ समबडी इज एंटरिंग फ्रॉम द डोर, आई कैन सी दैट ऑल्सो. सो दैट्स वाई वी हैव डिजाइन द पार्टीशन इन सच अ वे कि आपको जब भी विजिबिलिटी चाहिए तभी भी आपके पास वो फ्रीडम रह रही है. इट इज़ नॉट कि आपका फिक्स पार्टीशन हो गया है वो वाला. So this is our dining area. Now I am going to show you the daughter's room. So come on in. So now we are in the room which any girl can dream of. So yes, you guessed it right. It's a daughter's room and it has come out so beautiful that I can't wait to show you. But first I have to show you the 3D designs of this room कि हमने इसको कैसे डिज़ाइन किया था. So first let's have a look of that. सो ये जो डॉटर रूम है वहाँ पे हमने पेस्टल पिंक कलर का थीम लिया है, एंड दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल दैट आई कैन जस्ट एक्सप्लेन यू. एंड आई डोंट नो कि ये जो फोटो वीडियो आप देख रहे हो वो जस्टिस दे रहे हैं कि नहीं, बट दिस रूम इज़ अ ड्रीम ऑफ एनी गर्ल, आई कैन से दैट. ये रूम में जब आप एंटर होते हो तो वहाँ पे सबसे पहले एक लॉन्ग पैसेज है, एंड देन यू एंटर इन द मेन एरिया ऑफ द रूम. यहाँ का जो लेआउट है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे किंग साइज बेड लिया हुआ है विथ अ वेरी नाइस हेडबोर्ड. दिस इज़ इन द कुशन. और ये बेडरूम का जो एक्सेंट वॉल है दैट इज़ दिस बेड बैक वॉल. सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि बीच में बेड का जो साइज़ है वहाँ पे हमने एक कस्टमाइज वॉलपेपर ले लिया है. दिस हैज़ अ वेरी प्रिटी फ्लावर्स, और उसमें बेस जो है वो वाइट रखा है सो दैट ये पिंक फ्लावर जो है वो उसका इफेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से उभर के आ रहा है इसके ऊपर. एंड ऑन बोथ द साइड ऑफ द बेड हमने ब्रॉन्ज मिरर लिया है विद दिस LED लाइट. सो वी वांटेड टू ऐड मिरर्स, बट जब यहाँ पे जैसे बेड के दोनों तरफ मिरर है, एंड डेफिनेटली वी हैव वन मोर मिरर जो कि रेडी होने के लिए है, तो वो क्लियर ग्लास मिरर है. यहाँ पे क्लियर ग्लास अगर करते हैं तो उसका लुक इतना अच्छा नहीं आता जितना कि ये ब्रॉन्ज मिरर का आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा सा और एलिगेंट और क्लासी लगता है. सेकेंडली डे टू डे लाइफ में जो आप प्लेन मिरर है उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह दिख के आते हैं वो ये ब्रॉन्ज मिरर में इतने नहीं दिख के आते हैं. सो डेफिनेटली वेन एवर वी आर डिजाइनिंग एनी होम तो लुक इज अ प्रायोरिटी, बट डेफिनेटली फंक्शनैलिटी इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज द लुक्स. सो यहाँ पे हमने पिंक, और दूसरा ये भी था कि जो पीच पिंक पेस्टल कलर हमने ये रूम के लिए लिया है उसके साथ ये ब्रॉन्ज कलर लुक्स वेरी एलिगेंट. सो दिस आर द ब्रॉन्ज मिरर on the side of the bed, and we have provided this touch LED light which also adds on the beauty on this room. Then we have this huge passage on the other side of the bed. तो यहाँ पे हमने काफ़ी बड़ा वाला साइड यूनिट लिया है, एंड ये जो पूरा रूम है अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये घर में हमने सारे प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल और फिनिशेस यूज़ किया है. सो ये भी पूरा रूम जो है वो PU फिनिश और वुडन में है. यहाँ पे काफ़ी बड़ा पैसेज था तो वहाँ पे हमने बड़ा सा एक साइड यूनिट लिया है जिसमें वी हैव केप्ट 2 ड्रॉवर्स विद अ वेरी नाइस एंड क्यूट नॉब्स ऑन दैट. एंड दिस पैसेज ऑल्सो हैज़ अ ब्यूटिफुल व्यू ऑन दिस विंडो.
when we were selecting the curtains, we made sure कि हमें पेस्टल पिंक तो लेना ही है कर्टेन में, बट एट द सेम टाइम हमें वो ओवरडू भी नहीं करना था. सो व्हाट वी हैव डन इज कि जो 2 सेंटर वाले कर्टेन्स हैं वो हमने वाइट में लिए हैं, और एंड जो कर्टेन्स है वो एकदम माइल्ड पेस्टल पिंक में लिया है. सो इट लुक्स वेरी नाइस इन द कॉम्बिनेशन ओवरऑल. एंड whenever we are using colors, definitely if you have seen my videos and my work, I love to play with colors and lights. And I guess कोई भी space जो है वो उसका main जो look है, जो final finish है, वो सबसे ज़्यादा depend करता है on the colors and the lights we select. But whenever we are using any bright color or any other color, so we have to make sure कि उसको complement करने के लिए कोई एक सटल कलर भी साथ में हो. सो हियर इज द पेस्टल पिंक विद द वाइट. सो यहाँ पे जो कर्टेन्स है वो फुल हाइट कर्टेन्स है. एज यू कैन सी वी हैव केप्ट अ लाइट. जो सीलिंग का जो एक खांचा आता है वहाँ पे हमने एक एलईडी लाइट रख दिया है, सो दैट एलईडी लाइट फॉल्स ऑन दिस कर्टेन. और ये फुल हाइट कर्टेन है तो उसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है. whenever you are doing something similar to this, make sure कि जो आपकी कर्टेन की चैनल है वहाँ पे ऊपर एक प्लाई लग जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके ऊपर ही ये चैनल लगे. बिकॉज अगर आप पीओपी में ये चैनल लगा रहे हो तो वो लॉन्ग रन में उसका वेट नहीं ले पाएगी एंड देयर आर चांसेस कि वो गिर जाए. सो मेक श्योर कि आप एक प्लाई लगाओ और उसके बाद ये चैनल फिक्स करो. सो दिस इज द curtain details. Now let me show you the other side of the bed, that is the wardrobes. So ये जो पैसेज है वो बेड के राइट साइड वाला पैसेज है. यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि किंग साइज बेड लिया है, वो हमने पूरा स्टोरेज वाला बेड किया है विद द हाइड्रोलिक स्टोरेज, और यहाँ पे हमने इनसाइड स्टोरेज दिया है सो दैट एज यू कैन सी the bed boundary, bed border is not coming out and it is getting flush with the mattress. So whenever we are doing this kind of detail, तो हाइड्रोलिक शटर जो है वो उसको ओपन करने के लिए जो हैंडल्स होते हैं वो हमें टॉप का जो प्लैंक होता है उसके ऊपर इंस्टॉल करने होते हैं इफ़ यू वांट टू गिव दिस काइंड ऑफ डिटेल जो कि फ्लैश हो रहा है. सो एज आई मैंशन अर्लियर कि ये डॉटर्स रूम है. सो वेन एवर वी आर डिजाइनिंग एनी किड्स रूम और डॉटर्स रूम और सन्स रूम, जब भी हम हेडबोर्ड में कुशन लगाते हैं सो वी मेक श्योर कि इसका जो भी मटेरियल है वो वाटर अब्जॉर्बेंट नहीं हो, ताकि ये कोई भी चीज़ अगर इस पर गिर रही है या कोई भी स्टेन लग रहा है तो ईजीली आप कोई भी गीले कपड़े से या कोई भी डिटर्जेंट से उसको वाइप कर पाए पर वो चीज़ें अब्जॉर्ब ना हो जाए. सो दिस इज़ द डिटेल वी हैव गिवन हियर. जो हेडबोर्ड है उसमें भी हमने ये पैटर्न लिया है विच इज़ कमिंग आउट रियली नाइस एज यू कैन सी. एंड दिस इज़ द अदर साइड ऑफ द बेड जहाँ पे भी हमने LED टच मिरर लिया हुआ है इन द ब्रॉन्ज कलर. सो दिस इज़ द वार्डरोब ऑफ द बेडरूम. यहाँ पे हमने फुल हाइट वार्डरोब लिया है इन द ग्लास फिनिश. And to complement the pink pastel color which we have taken in this room, ये पूरा जो wardrobe है वो white shade में है. And in combination of this entire theme, the wardrobe is looking very है. हमने ये वॉल पे वुडन ट्रिम्स का डिज़ाइन लिया हुआ है और जो बेस कलर है उसको पेस्टल पिंक एकदम माइल्ड टोन में लिया है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो वुडन ट्रिम्स है उसको हमने वाइट कलर में लिया हुआ है सो दैट वो थोड़ा सा उठ के आ जाए. एंड देन देयर इज़ अ स्पेस फॉर दिस कीबोर्ड. उसके बाद क्लाइंट का बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था कि उनको प्रॉपर 5 फीट का स्टडी टेबल चाहिए. सो दिस इज़ अ ह्यूज स्टडी टेबल. अगेन दिस एंटायर स्टडी टेबल इज़ इन PU फिनिश और जो लेग्स है वो भी हमने कस्टमाइज बनवाया है. दिस इज इन वुड विथ अगेन द PU फिनिश. ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव गिवन 3 ड्रॉवर्स फॉर द स्टडी स्टोरेज. We have not given any handles for that, so you can just pull out this drawer from below, and this all are soft close over here. So these are the drawers for the storage.
नाउ देयर वाज वन मोर स्पेसिफिकेशन व्हेन वी वर डिजाइनिंग दिस रूम. उनकी जो डॉटर है शी इज़ मच इनटू पेंटिंग एंड ऑल दैट स्टफ. तो ये था कि जो टॉप है वो लो मेंटेनेंस चाहिए था. हमने ये टॉप पे पीओ किया है एंड देन उसके ऊपर हमने एक ग्लास का टॉप रख दिया है सो दैट वॉट एवर द पेंट स्टेन और एनीथिंग कम्स वो लोग बहुत ईजिली इसको मेंटेन कर पाए. सो दिस इज द एंटायर स्टडी टेबल. So now when you enter from this passage, the first thing you see while coming inside is this big mirror. So we have given one clear big mirror. You like it how you want it. So उन्होंने एक बहुत ही सिंपल तरीके से हमें बताया था कि we want a house जो कि ट्रेडिशनल हो साथ साथ में कंटेम्प्ररी और मॉडर्न भी होना चाहिए. तो ये जो मास्टर बेडरूम है उसमें हमने दोनों चीज़ें को कंबाइन करने का जो ट्राई किया है इट हैज़ कम आउट रियली नाइस. सो फर्स्ट लेट मी शो यू कि हमने ये रूम का जो 3D डिज़ाइनिंग किया था वो कैसा हुआ था. सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम. यहाँ पे हमने जो बेड है वो किंग साइज बेड लिया है. अगेन द बेड फिनिश इज इन द पीयू हाई ग्लॉस पीयू फिनिश. यहाँ का जो हेडबोर्ड है वो हमने थ्रू आउट लिया है बिकॉज एज यू कैन सी वी हैव अ विंडो ओवर हियर. तो अगर हाफ करते हैं तो वो लुक नहीं आएगा. एंड जो पूरा घर है पूरा जो ये रूम भी है सब में हमने एक लग्जूरियस और एलिगेंट टच दिया हुआ है. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू गिव दैट लग्जूरियस टच तो आप जितना हेडबोर्ड आप हैवी करते हो, हैवी इन द सेंस नॉट इन द लुक बट वेन एवर यू आर डूइंग द गुड साइज ऑफ हेडबोर्ड इट डेफिनेटली एड्स द वैल्यू टू द एंटायर रूम. सो यहाँ पे जो हेडबोर्ड है वो हमने फुल वॉल टू विंडो लिया हुआ है और साइड यूनिट्स जो है वो भी हमने कस्टमाइज किए हैं. दिस क्यूट लिटिल साइड यूनिट्स वी हैव मेड ओवर हियर ओनली. दिस हैज़ द ड्रॉवर. सो दिस ऑल्सो हैज़ वन नाइस ड्रॉवर और जो उसका बेस हमने बनाया हुआ है वो फैब्रिकेशन में करके उसके ऊपर पीयू किया हुआ है. यहाँ का जो हेडबोर्ड है उसको हमने फ्लोर तक लिया हुआ है बिकॉज व्हेन यू सी फ्रॉम सम डिस्टेंस अगर ये हेडबोर्ड नीचे तक कनेक्टेड नहीं है इट गिव्स यू नॉट अ वेरी नाइस लुक. सो हमने दोनों तरफ जो हेडबोर्ड है वो टिल द फ्लोर लिया हुआ है. वी हैव गिवन दिस इफेक्ट ऑन द हेडबोर्ड्स विच इज़ लुकिंग रियली नाइस ओवर हियर. उसके बाद जो हमारा मेन एक्सेंट वॉल ऑफ दिस रूम इज द बेड बैक वॉल. एज आई मेंशन अर्लियर उनको एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन घर चाहिए था एंड वी हैव ट्राइड इन ईच रूम कि वो थोड़े से ग्लिम्स उनको हर जगह आए. सो ये जो कस्टमाइज वॉलपेपर है उसमें एक पीकॉक थीम है उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है एंड दिस इज द शो स्टॉपर ऑफ दिस एंटायर रूम. इट इज़ लुकिंग सो नाइस विद द कलर कॉन्ट्रास्ट जो हमने पूरे रूम का लिया हुआ है. एंड देन वी हैव दिस टू वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल हैंगिंग लाइट्स ओवर हियर टू एड ऑन द वैल्यू टू द एक्सेंट वॉल. Whenever we design any room, curtain combination and curtain selection plays a major role because जैसे ये रूम है उसमें काफ़ी एरिया जैसे कि ऑलमोस्ट 5 फीट प्लस 2 फीट का एरिया आपका कर्टेन ले लेता है एंड इवन इन द हाइट 10 फीट हाइट. सो कर्टेन सिलेक्शन प्लेज अ मेजर रोल. तो हमने जब ये घर की कर्टेन सिलेक्ट कर रहे थे तो हमने काफ़ी ट्रायल्स एंड एरर्स किए थे. फाइनली वी सिलेक्टेड दिस कर्टेन फॉर दिस बेडरूम बिकॉज हमें एक बेज थीम चाहिए था विथ सेल्फ टेक्सचर ऑल्सो. So this is the beige cream texture curtain which goes really well with the entire room theme. So this is the passage from where you entered the room.
Then this wall is the TV unit wall. So there are multi-purpose designs on this wall. और ये wall जो है उसमें हमने जो जो रखा है उसके use भी different है. So first of all, over here we have given a paneling for the TV unit and we have done that paneling in two different level. हर एक लेवल के पीछे हमने कंसील LED लाइट रखी है so that it gives you a nice depth. और यहाँ पे हमने जो मार्बल स्टोन इफेक्ट आता है वैसा फिनिश दिया है. दिस इज इन द डार्कर फिनिश एंड दिस इज इन द लाइटर टोन. नाउ ऑन द स्विच बोर्ड्स हमने हर रूम में अलग तरीके का जो थीम लिया है. बेस्ड ऑन दैट वी हैव सिलेक्टेड द स्विच बोर्ड्स ओवर हियर. सो जैसे कि यहाँ पे हमने डार्क ग्रे ब्लैक थीम लिया हुआ है. सो यहाँ पे जो स्विचेस है वो भी हमने मैट ब्लैक में ली हुई है. सो दिस इज द पैनलिंग फॉर द टीवी यूनिट. नीचे का जो स्टोरेज है यहाँ पे हमने टॉप जो है वो PU फिनिश में लिया है और आगे के जो ड्रॉवर्स है यहाँ पे भी हमने हैंडल लेस ड्रॉवर लिए है बिकॉज दिस इज अ पैसेज एंड दे हैव अ पेट. तो एक तो हमारे स्पेसिफिकेशन थे कि वो पेट फ्रेंडली घर होना चाहिए एंड सेकेंडली जितना हो सके क्लटर फ्री घर लगना चाहिए. तो यहाँ पे कहीं पे भी हमने हैंडल्स वगैरह नहीं लिए हैं. सो दिस ऑल यू कैन इजीली ओपन फ्रॉम द बिलो एंड देन दिस ऑल आर द सॉफ्ट क्लोज. सेंटर वाला जो पोर्शन है वो हमने ओपन दे दिया है. सो इफ द इन फ्यूचर दे वांट टू कीप एनी सेटअप बॉक्स तो उसके लिए हमने ये बीच वाला जो पोर्शन है वो ओपन दिया हुआ है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस जायंट ड्रेसिंग स्टोरेज. सो यहाँ पे हमने चारकोल लूवर्स यूज किए हैं विच इज़ अ प्रीमियम मटेरियल एंड दिस गिव्स सच अ नाइस लुक एंड टेक्सचर. सो व्हेन यू सी दिस वॉल आपको ये आइडिया नहीं आता है कि ये पूरा स्टोरेज है एक्चुअली. सो व्हाट वी हैव डन इज ये चारकोल पैनल हमने लगाया है इसके ऊपर एंड देन वी हैव गिवन वन स्मॉल ग्रूव ऑन द साइड और उसको व्हेन यू ओपन दिस देयर इज अ ह्यूज स्टोरेज इनसाइड एंड यू डोंट इवन फील सच हैवी स्टोरेज इज देयर बिकॉज ऑफ द डिजाइन वी हैव सिलेक्टेड ओवर हियर. तो एक उसमें कहीं पे भी आपको हैंडल्स नहीं दिख रहे हैं और दूसरा रीज़न ये है कि जो पूरी डिज़ाइन है वो एक कनेक्टिविटी में जा रही है. वन मोर थिंग वी हैव डन ओवर हियर इज जैसे कि हमने ये पैनल बनाया हुआ है तो इसको हमने सिर्फ यहाँ पे नहीं छोड़ दिया है. जैसे कि ये हमने ड्रेसिंग यूनिट का चारकोल पैनलिंग किया है तो वो भी यहाँ पे हमने एंड नहीं किया है बिकॉज देयर इज अ स्पेस बिलो. तो वैसे आई लेवल पे ये नीचे का स्पेस नहीं दिखता है बट व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द बेड और व्हेन यू आर स्टैंडिंग नियर द विंडो तो आपको नीचे तक की स्पेस दिखती है. सो एज यू कैन सी दिस हमने ये पूरा डिज़ाइन नीचे तक कंटिन्यू किया है सो दैट इट डज नॉट लुक इनकम्प्लीट एट ऑल. सेकेंड थिंग जब भी हमने ये ड्रेसिंग यूनिट डिज़ाइन किया था तो यहाँ पे भी हमने लूवर्स लिए हैं और स्विच बोर्ड लिए बिकॉज वेन एवर वी हैव अ ड्रेसर तो डेफिनेटली वी नीड अ हेयर ड्रायर और ट्रिमर और एनीथिंग सो वी नीड अ 5 एम्पियर ओवर हियर. सो उसके लिए हमने ये लिया है बट अगर हम ये स्टोरेज को नीचे तक टच कर लेते सो व्हेन यू ओपन द शटर आगे ये जो भी चीज़ें हैं वो गिर जाती. सो टू अवॉइड दैट हमने ये जो पैनल है वो फिक्स दे दिया है और ऊपर का जो है वो शटर लिया है. बट व्हेन यू सी इट फ्रॉम द डिस्टेंस आपको वो आइडिया नहीं आता है कि दिस इज ऑन अ डिफरेंट लेवल. सेकेंडली फॉर द मिरर विद द ड्रेसर तो हमने इसके ऊपर नहीं लिया है बिकॉज वी वॉन्टेड टू गिव वेरी नीट एंड क्लीन लुक ओवर हियर. सो when you enter from the passage you see this very big beautiful giant mirror on this wall and this entire mirror is touch LED mirror as you can see and you can see the full reflection and this is so big that when you enter the room you definitely gets a feeling that room is double in the size than the actual. So this is the overall concept of the TV side wall. Now let me show you the wardrobe side. So now this is the giant big and very elegant 11 feet master bedroom wardrobe. So we have given 4 shutters over here and as I mentioned earlier also कि यहाँ पे पूरा premium quality का material and finishing use किया हुआ है. So as you can see the finishing of this as well. So this is a soft close slider. So as you can see these doors when you open and when you leave these doors it does not bang. So this is the minor thing but actually for the long run it plays a major role. And one more detail is that you can see this vacuum. So whenever the doors are shut it does not leave a space कि जहाँ से dust अंदर जा पाए
बिकॉज ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि स्लाइडर डोर्स या ओपनेबल डोर्स कोई भी डोर लो, पर वहाँ पे अगर गैप है तो डस्ट वगैरह अंदर चली जाती है। सो दिस इज द डिटेल जिसकी वजह से वो आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। सो बीच वाले जो 2 डोर है उसमें हमने थोड़ा सा डार्कर शेड ऑफ ग्लास लिया हुआ है, और जो 2 एंड वाले डोर है उसमें हमने जो थीम लिया हुआ है बेज वैसा डोर है। सो ओवरऑल ये पूरा जो जायंट एलिगेंट वार्डरोब है और हमारी पूरी जो थीम है ये बेडरूम की, इट मर्जेस सो वेल विद ईच अदर दैट इट एड्स ऑन सच अ गुड वैल्यू टू द एंटायर रूम। So this is for the master bedroom. Now let me show you the last room, that is study room. So this is the multi-purpose room I can say. ये study के लिए भी use हो रहा है, office work के लिए भी, पूजा, library, gym. So I guess there has to be one room like this जिसमें बहुत free space है and you can utilize it the way you want it as per the requirement. So once I enter, we have this beautiful puja. So जैसे मैंने बताया कि they wanted traditional touch everywhere. So as you can see this beautiful wooden temple, this has this peacock carving over here, then there is this elephant. So this all is like जो वो जहाँ से आ रहे हैं they wanted the glimpse and to make it a home I guess. Everybody has certain memories in their mind. अगर वो आप घर में डिज़ाइनिंग करते टाइम इनकॉर्पोरेट करते हो तो आई गेस दिस इज गोइंग टू एड द वैल्यू टू द फैमिली जो कि यहाँ पे रहने वाले हैं. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल ओवर हियर जिसमें यू कैन सी देर इज़ अ स्मॉल ट्रे, then there is a cute little puppy which goes inside. So this is a puja unit. Now on the other side, so on this side as you can see there is a nice library. This clients are very much into reading and all, so as you can see they have a very nice collection of the books over here. So then there are gym equipments and there is lots of space to exercise also in this room, and on this corner there is a working desk. So this is it for the multi-purpose room. Now let me show you the kitchen and the dry balcony. So this is the kitchen of the house. The best part of this kitchen is this is a hidden kitchen. तो आप जब लिविंग रूम में हो या डाइनिंग पे हो यू कांट सी एनीथिंग ऑफ द किचन. यहाँ वाला जो स्टोरेज है, यहाँ वाला जो किचन का एरिया है वो पूरा मॉड्यूलर है. उसके ऊपर यहाँ पे देर इज़ वन फ्लोटिंग शेल्फ इन वुडन थीम, एंड फॉर ईजी एंड हैंडी स्टोरेज देर आर 2 overheads over here. These are double shutter overheads with the soft close, and on the other side there is a huge sink, quartz का sink है ये, and to complement that there is a antique gold finish tap over here which is very convenient to use, and over that there is a water purifying machine and that has been covered by these shutters. So this is the entry of the kitchen from this passage. तो यहाँ पे जो एंट्री है वहाँ पे हमने वुडन प्लस विनियर का क्लैडिंग किया हुआ है और उसके ऊपर पीयू फिनिश किया हुआ है. सो इसका ये बेनिफिट है, एक तो जो किचन में आप एंटर होते हो तो इट गिव्स यू अ वेरी नाइस एंड एलिगेंट लुक. सेकेंडली फंक्शनली अगर हम देखे जाए तो जो भी चीज़ें अंदर बाहर आती है या कोई भी हैवी सामान है तो देर आर चांसेस कि ये जो एज है वॉल की वो डैमेज हो सकती है. सो if you do such kind of paneling, so first of all it gives you a very elegant look, and secondly जो आपके wall के edges होते हैं वो कभी कभी trim और chipped हो जाते हैं, so इससे वो नहीं होता है. So it gives you a long durability also. Right side is the space for the refrigerator and left side जो है वहाँ पे हमने storage किया हुआ है. So this front portion is the utility and electronics जो कंसिल है उसके लिए यूज़ किया है. यहाँ पे कहीं पे भी हैंडल नहीं है. रीज़न बीइंग व्हेन यू एंटर इफ देर आर हैंडल्स तो वो थोड़ा सा ऑब्स्टेकल में आ जाता है. सो ये पूरा फ्लश डिज़ाइन है टू गिव इट अ वेरी नाइस एंड क्लीन लुक. दिस इज द पुश ओपन शटर्स, सो देर इज अ स्टोरेज ऑन द टॉप.
काउंटर बना देते हैं सो दैट हाउस हेल्प्स वगैरह यहाँ पे ड्राई बालकनी में ही दे कैन डू दैट वर्क। सो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा ग्रेनाइट ले लिया एंड देन वी हैव केप्ट अ सिंक ओवर हियर विद द ड्रेन बोर्ड। वहाँ पे हमने प्लम्बिंग में थोड़ा सा एड ऑन करके वी हैव पुट अ टैप ऑन दैट वॉल और यहाँ पे पूरी जो वॉल है उस पर हमने वाइट कलर का टाइल क्लैड कर दिया है सो दैट मेंटेनेंस बिकम्स वेरी इजी। एंड देन वी वॉन्टेड अ स्पेस फॉर द डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन बोथ। तो यहाँ पे डिश वॉशर के लिए हमने थोड़ा सा हाइटेड ग्रेनाइट लिया है एंड देन वी हैव प्लेस्ड अ डिश वॉशर ऑन दिस साइड एंड हियर ओवर हियर वी हैव प्लेस्ड अ वॉशिंग मशीन। नाउ डेफिनेटली कोई भी ड्राई बालकनी वगैरह होते हैं उसमें नॉर्मल यूटिलिटी का सामान स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इफ़ वी डू नॉट क्रिएट दैट स्पेसिफिक स्पेस तो बहुत हैफिजार्ड दिखता है। सो राइट नाउ एज यू कैन ऑल्सो सी सारा स्टोरेज कंसील्ड है, कहीं पे भी आपको कुछ भी बाहर नहीं दिखता। सो इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक दैट मेक श्योर वेन एवर यू डिज़ाइन एनी स्पेस एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्टोरेज हर जगह के लिए अलॉट हो जाए सो द स्पेस लुक्स मोर क्लीन। So here we have given this storage. You can say it's a nice big storage, but at the same time हमने ये ध्यान में रखा है कि जब भी यहाँ पे ये सारा काम चल रहा हो तो किसी को वो ऑब्स्टेकल नहीं आए। जैसे यहाँ अगर यूटेंसिल वॉश हो रहे हैं तो हेडबैग नहीं होना चाहिए, कपड़े अगर यहाँ पे ड्राई हो रहे हैं तो वो भी ईजिली होना चाहिए विदाउट ये स्टोरेज को कुछ भी ऑब्स्टेक करे बिना। सो यहाँ पे हमने विदाउट हैंडल वाला स्टोरेज ले लिया है and it is quite big also. So सारी यूटिलिटी की चीज़ें आराम से इसमें आ जाती है। Now coming towards another side, यहाँ पे पूरी डक्ट जा रही है बिल्डिंग की तो हमें इसको थोड़ा सा कवर करना था बट एट द सेम टाइम हम उसको कम्प्लीटली कवर नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये सर्विस डक्ट होती है तो कभी भी इसमें सर्विसिंग की नीड्स आ सकती है। सो व्हाट वी हैव डन इज़ यहाँ पे हमने पीवीसी का डोर बना दिया है। वन मोर थिंग, ये पूरे ड्राई बालकनी में जो भी फर्नीचर हमने किया है वो पूरा पीवीसी विथ लैमिनेट में किया है बिकॉज यहाँ पे मॉइस्चर और पानी जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा रहता है देन द इंटीरियर ऑफ द हाउस। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप यहाँ पे पीवीसी मटेरियल यूज़ करो सो दैट उसकी लाइफ और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो कमिंग बैक टू दिस, हमने यहाँ पे ये शटर्स बना दिए हैं ओपनेबल एंड अगेन हमने उसमें छोटे छोटे स्टोरेज दे दिए हैं so that whatever they want to store they can also utilize this space and store the utility stuff inside. So this is it guys. If you like our work, please like, share and subscribe and do follow us on our Instagram channel also to see more of this kind of videos. Stay happy, stay safe. Bye.